welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 3 of the Hindu Marriage Act 1955. But guys, today we are going to discuss Section 3 Clause G of the Hindu Marriage Act. Guys, so far I've covered an introductory lecture to the Hindu Marriage Act. Then we have covered Section 1 and 2. I've also uploaded videos on Section number 3, but I've told you that we'll be covering Section 3 in 3 parts all in all. In first very video we discussed Section 3 Clause A to E, जिसमें हमने definitions देखी, basic and easy definitions. Then guys, in my previous video we have discussed Section 3 Clause F, in which we discussed Sapinda relationship. And guys, in today's video we are going to discuss Section 3 Clause G, and we'll be finishing Section 3 today. In today's video we are going to talk about degrees of prohibited relationship. But guys, before you watch this video, if you have not watched my previous video, especially on Section 3 Clause F, please go and watch that video first, because आज की इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो स्पिंडा रिलेशनशिप से ही उठाएंगे. स्पिंडा रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू डू नॉट नो स्पिंडा रिलेशनशिप, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो विद अ ब्यूटीफुल diagrammatic illustration. I've made you familiar with what a spinda relationship is. So guys, before we move on, if you're new to my channel and you've not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with Section 3 Clause G, which talks about degrees of prohibited relationship. Guys, जिस तरीके से हमने degrees of spinda relationship करी थी, which was third generation inclusive in the line of ascent from mother, and fifth generation inclusive in the line of ascent through father, and the person and the line is to be traced upwards, and the person concerned is to be treated as the first generation. अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, मैंने जो बोला आपको समझ आ चुका होगा. उसी तरीके से guys, just like degrees of spinda relationship, we are going to discuss degrees of prohibited relationship. इसका मतलब क्या होता है कि as the term itself indicates prohibited relationship. कुछ लोगों के साथ आपका prohibited relationship होता है. Prohibited relationship is in the context of marriage. मैंने आपको beginning में ही बताया था in my previous video that both spinda relationship and degrees of prohibited relationship are prohibitions on marriage. Since we are concerned with the Hindu Marriage Act, हम marriages के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि there are certain prohibitions on marriage. एक इंसान हर एक इंसान से शादी नहीं कर सकता. देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशंस, और वो प्रोहिबिशंस डिपेंड करती हैं आपके स्पिंडास पे और आपके डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे. एंड आई हैव टोल्ड यू कि गाइज, अगर आप विद इन दिस स्पिंडा रिलेशनशिप और विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मैरिज करोगे, दैट मैरिज इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, एंड दैट मैरिज इज नॉट अ वैलिड मैरिज. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इट इज void ab initio, void right from its beginning, right from its inception, right? It is null and void. In fact, it is no marriage at all in the eyes of the law with respect to the Hindu Marriage Act 1955. Is it guys? आपको क्लियर हो चुका है कि हम ये क्यों स्टडी करते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप को या डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को? मैंने वैसे अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बेसिक्स आपको बताए थे, बट आई हैव रिपीटेड इट हियर फॉर द वंस हु हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो. अब गाइज, हम यहाँ पे सबसे पहले अगेन बॉट डेफिनेशंस फॉर यू, ताकि आपको समझना इजी हो जाए डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैंने ड्रॉ क्या किया है, उसके बाद हम इसको समझेंगे. बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्विक है. आपका क्लॉज जी जो है बहुत इजी है. सबसे पहले गाइज, मैंने बॉय एंड गर्ल दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पे ली हैं, दोनों की एग्जांपल्स ली हैं, ताकि आपको डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड एंड वाइफ जब वो कॉन्टेक्स्ट आएगा आपको समझ आ जाए. दिस इज अ बॉय. Boy is the person concerned, and as a result of it he is to be treated as the first generation as per Section 3 Clause F. I hope आपको पता है कि he will be treated as the first generation. But guys, a point of differentiation between spinda relationship and degrees of prohibited relationship is that spinda relationship में हम हमेशा upwards जाते हैं. If you remember, मैंने एक वर्ड यूज किया था lineal ascent. लीनियल असेंडेंट का मतलब होता है कि आप स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हो, एंसेस्टर्स की तरफ, अपने पूर्वजों की तरफ जाते हो. लेकिन गाइस, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अपार्ट फ्रॉम गोइंग अपवर्ड्स, हमें डाउनवर्ड्स भी आना होता है. लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स हम दोनों को देखते हैं. अनलाइक स्पिंडा रिलेशनशिप, वहाँ हम ऐसा नहीं करते. डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हम अपने डिसेंडेंट्स को भी देखते हैं, यानी कि जो हमारे आने वाली, उसके बाद की जो जनरेशन है, हमारे के बाद आने वाली जनरेशन, उसको भी हम देखते हैं. तो यहाँ पे गाइस, मैंने एक बॉय की एग्जाम्पल ली है एंड गर्ल की एग्जाम्पल ली है. दीज आर पर्सन्स कंसर्न, हेंस ट्रीटेड एज फर्स्ट जनरेशन. गर्ल की आगे मदर, मदर्स मदर, देन मदर्स मदर्स हस्बैंड, यानी कि इस गर्ल के नाना जी.
उसी तरीके से वी हैव अ बॉय, बॉयज फादर, हिज फादर्स फादर एंड देन हिज फादर्स फादर्स वाइफ, राइट, इट मीन्स उसकी दादी। सिमिलरली हम असेंडेंट्स के बाद डिसेंडेंट्स पे भी जाएंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। वहां पे अपने पास क्या है, ही इज अ बॉय, बॉय विल बी हैविंग अ सन, सन्स सन एंड देन उसके सन की वाइफ जो होगी। सिमिलरली हियर वी हैव अ गर्ल, देन गर्ल्स डॉटर, हर डॉटर्स डॉटर एंड देन हर हस्बैंड। तो हमने ये एग्जाम्पल्स ली हैं। अब आपको बताऊंगी कि मैंने ये डायग्राम ऐसे क्यों ड्रॉ करी है। सो गाइज हमारे पास कुछ आती हैं 4 पॉइंट्स आती हैं, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज जी, सब क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दीज पीपल, ये जितने भी चारों लोग होंगे ना, दे आर कंसीडर्ड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड हेंस यू कैन नॉट मैरी दीज पीपल, राइट। सबसे पहला तो है कि द वंस हु आर ट्रीटेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज अ पर्सन who is a lineal ascendant or who is a lineal ascendant of the person concerned. अब guys I think मुझे ये समझाने की भी जरूरत नहीं है, if a person is a lineal ascendant of the other, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता within the degrees of Sapinda relationship. आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये Sapinda रिलेशनशिप में हमने देखा था कि एक इंसान दूसरे इंसान का लीनियल असेंडेंट है। उसका मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे देखो 2-in-1 डायग्राम्स मैंने बनाई है, आपको सब कुछ इन डायग्राम्स में समझ आने वाला है। यहाँ पे गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि वो लोग डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होंगे। फर्स्ट कौन सा इंसान होगा, सेक्शन 3 क्लॉज जी सब क्लॉज 1 में, इफ वन पर्सन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। लीनियल असेंडेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन में आपका जो एंसेस्टर होगा, पूर्वज होगा, अगर विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप, यानी कि 3rd जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड एंड 5th जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड, अगर उन जनरेशन्स के बीच में कोई भी आपका लीनियल असेंडेंट है, बी इट दैट पर्सन हिमसेल्फ और जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, उसके रिलेशंस हैं, तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखो, ये बॉय है, ना तो वो अपने फादर से शादी कर सकता है, ठीक है, ना अपने फादर की वाइफ से शादी कर सकता है, उसके बाद ना वो अपने फादर के फादर से यानी कि अपने दादाजी से कर सकता है, ना ही दादी जी से शादी कर सकता है, एंड नॉ कैन ही मैरी देयर चिल्ड्रन। तो यही होता है आपका लीनियल असेंडेंट। लीनियल असेंडेंट का तो बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाना, लीनियली असेंड करना, अपने पूर्वजों और अपने एंसेस्टर्स को देखना, यानी कि दिस गर्ल कांट मैरी हर फादर, राइट, दिस गर्ल कांट मैरी हर मदर, क्योंकि ये उनके क्या लीनियल असेंडेंट्स है। ऊपर को जाते रहोगे तो ये सिंपल था, स्पिंडल रिलेशनशिप में भी हमने देखा था। और आपको कब तक जाना है, व्हाट इज दैट डिग्री, क्योंकि ऊपर जाने को तो गाइस जितना मर्जी ऊपर जाते रहो, तो वो डिग्री क्या है, दैट इज 3rd जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड। उसके बाद जो 4th जनरेशन होगी आपकी मदर की साइड से, वो आपके स्पिंडल्स नहीं है, वहाँ पे क्रॉस खत्म हो जाएगा, और क्रॉस के ऊपर लोग जो होते हैं वो आपके स्पिंडल्स नहीं होते, एंड यू कैन ईजिली गेट मैरिड। और फिर वो जो है मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज, अगर मैं बात करूँ हिंदू मैरिज एक्ट के पर्सपेक्टिव से। आई होप गाइस ये क्लियर हो चुका है। पुराना पॉइंट है, स्पिंडल रिलेशनशिप पे हमने डिस्कस किया था। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि वो कौन से लोग हैं जो द वंस हु आर कंसीडर्ड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वो हैं, ध्यान से सुनना, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड, राइट, इफ वन वाज द वाइफ और द हस्बैंड in the lineal ascendancy or descendancy of the other यहाँ पे refers to this boy and this girl, the ones who are the concerned persons treated to be the first generation। तो कहते कि जो इंसान क्या होगा, वाइफ या हस्बैंड होगा ऑफ द लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। यहाँ पे गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अब ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है। इट मीन्स आप देखो, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को क्यों ड्रॉ किया था कि आपको हस्बैंड एंड वाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो डायग्राम से समझाती हूँ, उसके बाद इसको जब मैं रिपीट करूंगी ना इस लाइन को, आपको समझ आ जाएगी। ये बॉय है, बॉय के फादर देन हिज फादर्स फादर, उनके जो वाइफ हैं, फादर्स वाइफ, इट मीन्स बॉय की तो दादी हैं, ही कांट मैरी, अंडरस्टूड है कि वो शादी नहीं कर सकता। एक तो वो ऑब्वियसली लीनियल असेंडेंट भी हैं, और दूसरे तरीके से एक्सप्रेसली भी लिख दिया कि ना तो आप ऐसे लीनियली असेंडेंट से शादी कर सकते हो और ना ही आप डिसेंडेंट से। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास बॉय है, बॉय का जो सन होगा, सन एंड देन हिज वाइफ, ही कांट मैरी, इसलिए मैंने ये लाइंस में ड्रॉ कर दी आपके लिए। सिमिलरली गाइज अगर हम यहाँ पे आ जाएं, गर्ल के पर्सपेक्टिव से देखें तो गर्ल्स मदर्स मदर एंड देन हर हस्बैंड, इट मीन्स उसके नाना जी। सिमिलरली गर्ल की अगर हम डिसेंडेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपके लीनियल असेंडेंट्स हैं और यहाँ से आपके डिसेंडेंट्स हैं। तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम असेंडेंट्स हमें लीनियल डिसेंडेंट्स को भी देखना होता है, और आप उनसे भी शादी नहीं कर सकते। लीनियल डिसेंडेंट्स भी आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। सिमिलरली गर्ल गाइज, यहाँ पे गर्ल, हर डॉटर्स डॉटर एंड देन शी कांट मैरी हर डॉटर्स डॉटर हस्बैंड,
उससे वो शादी नहीं कर सकती। इट मीन्स सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था कि वन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। इसमें से कोई भी आप ले लो, लेकिन इससे ऊपर देखना है, इससे नीचे नहीं, क्योंकि वो डिसेंडेंट्स हैं। ये जो डिसेंडेंट्स का पॉइंट है ये आपका सबसेक्शन 2 है, सब क्लॉज 2, सेक्शन 3 क्लॉज जी सब क्लॉज 2, वहां पे हमने डिसेंडेंट्स को देखना है। सब क्लॉज 1 में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसली लिखा है लीनियल असेंडेंट, तो यहाँ से आपको ऊपर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि वन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, इनमें से कोई भी आप ले लो, लीनियल असेंडेंट ही है वो, राइट। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि वन वॉज द वाइफ और द हस्बैंड, वाइफ और द हस्बैंड इन द लीनियल असेंडेंट और द डिसेंडेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 3 क्लॉज जी सब क्लॉज 3 and 4। सब क्लॉज 3 and 4 आर क्वाइट ईजी, बहुत बेसिक है। पहले आपको हिंदी में बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। हिंदी में सब क्लॉज 3 बेसिकली बोलता है कि वो इंसान भी आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा अगर वो इंसान कौन है, अगर वो वाइफ है इस इंसान के ब्रदर की, राइट। यानी कि यहाँ पे आप गर्ल ले लो या बॉय ले लो, एज द केस में भी, अगर वो कौन है, वाइफ है ऑफ दिस पर्सन्स ब्रदर, या आपके फादर या मदर के ब्रदर की वाइफ है, या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के ब्रदर की वाइफ है, तो वो भी आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। बेसिक सी बात है। ऑब्वियसली इफ वन, तो लिखा क्या है कि इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ दिस पर्सन, वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ फादर और मदर, और वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। तो ये बेसिक सी बात लिखी है एज यू नो as far as this person is concerned. Guys, next we have subclause 4. Subclause 4 is also quite easy. Subclause 4 बोलते हैं कि if the two people are brother and sister. Obviously ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि if the two people are brother and sister, or if they have a relationship of uncle and niece, nephew and aunt, or if they are cousins. अगर वो cousins हैं, cousins कैसे होंगे, यानी कि आपका जो real brother है, if the two people are brothers, if the two our people are sisters, or if they are brother and sisters, तो उनके आगे जो children होंगे वो सभी एक दूसरे के कजन्स होंगे। इट मीन्स गाइज ये भी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है गाइज। सो इफ आई रिपीट इट, मैं आपको इफ बिफोर आई रिपीट लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ गाइज, दैट फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज F and G, यानी कि चाहे वो स्पिंडर रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करें, दोनों में डजंट मैटर वो जो आपका चाइल्ड है या आपकी जो एंसेस्ट्री है या आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, चाहे वो हाफ ब्लड से रिलेटेड हो आपसे, या वो फुल ब्लड से रिलेटेड हो, या फिर वो यूट्रीन ब्लड से रिलेटेड हो, बी इट एन अडॉप्टेड चाइल्ड और अ नेचुरली बॉर्न चाइल्ड, लेजिटिमेट और एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू कांट से कि वी पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन, राइट, अगर इस बॉय की कोई भी सिस्टर होगी, यानी कि इस फादर की कोई भी डॉटर होगी, और अगर इनका रिलेशनशिप फुल ब्लड का नहीं है, हाफ ब्लड का है, इट मीन्स इनकी मदर्स डिफरेंट है। Boy and girl are brother and sister only because they have a common ancestor. Common ancestor means common father. But what if their mothers are different? तो क्या होगा, they can't say, ये boy नहीं कह सकता कि I'll marry that girl since she is not my sister because we are not related to each other by full blood. तो यहाँ पे explanation जो है to section 3 उसमें clearly लिखा है कि doesn't matter आपका relationship आपके ancestors के साथ या आपके descendants के साथ, फुल ब्लड है, हाफ ब्लड है, यूट्रीन ब्लड है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, या फिर वो अडॉप्टेड या नेचुरली बॉर्न चाइल्ड है, जैसा मर्जी बच्चा है, जो मर्जी रिलेशनशिप है, वो विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी काउंट होंगे एंड विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडर रिलेशनशिप भी काउंट होंगे। यू कैन नॉट एक्सक्लूड देम, राइट। आपको मैंने एग्जांपल दी कि दिस बॉय कांट से कि दैट गर्ल इज नॉट रिलेटेड टू मी बाय फुल ब्लड सिंस वी हैव डिफरेंट मदर्स, सो शी इज नॉट माई सिस्टर, आई कैन मैरी हर। You can't do that because relationship कोई भी हो, अडॉप्टेड चाइल्ड भी होगा ना, आपकी जनरेशन में आता हुआ किसी का अडॉप्टेड चाइल्ड भी होगा, उससे भी आप शादी नहीं कर सकते। यू कैन से कि ये हमारी फैमिली का नहीं, ये अडॉप्टेड है सो आई कैन मैरी, वो आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड एंड स्पिंडर रिलेशनशिप में ही आएगा। दिस हैज बीन एक्सप्रेसली जॉट डाउन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3। सो गाइज प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो इफ आई रिपीट सेक्शन 3 क्लॉज G, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि कुछ लोग आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि जो आपके लीनियल असेंडेंट्स होंगे, उसका मतलब कि वो आपको क्लियर हो चुका होगा, जो आपकी लीनियल स्ट्रेट लाइन में आपके असेंडेंट्स हैं, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। उनके जितने भी रिलेशंस होंगे, उनकी वाइफ्स, उनके ब्रदर्स, उनके चिल्ड्रन, जितने भी रिलेशंस होंगे, उनसे आप शादी नहीं कर सकते, यानी कि वाइफ है, ठीक है,
आपके लीनल असेंडेंट्स की जो वाइफ है या उनके हस्बैंड्स हैं, चाहे वो असेंडेंट्स है चाहे वो डिसेंडेंट्स हैं, यू कांट मैरी देम, राइट। उसके बाद कोई अंकल एंड नीस का रिलेशनशिप है, नेफ्यू एंड आंट का रिलेशनशिप है, कजन्स हो आप, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स हो आप, सो डजंट मैटर, यू कांट मैरी, बी इट एनीबडीज वाइफ, फादर, हस्बैंड, जो मर्जी है, you can't marry these relationships. These are degrees of prohibited relationship, and if you will marry, these marriages will not be recognized, and hence these marriages will be void ab initio. Law will not recognize these marriages to be a valid marriage. So guys, I'm completed with section 3 today. Still guys, if you have any doubt related to Sapinda relationship and degrees of prohibited relationship at least, feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe, and bye-bye.